हाँ जी बच्चे शुरू करें, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। सो वी हैव डन द बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसमें हमने बच्चे प्लीज बातें नहीं, अमनदीप। So we have talked about mean, median, mode. Okay, then the variability के measures, range, interquartile range, box plot, variance and standard deviation. So they are very easy to calculate. मैंने आपको manually भी करके दिखाया, but हम usually manually नहीं करते. We can take the help of Excel. Okay. So after statistics, after understanding the basic of statistics, हम पढ़ते हैं data interpretation के बारे में. कुछ data interpretation हम already statistics में पढ़ चुके हैं, जैसे graphs हो गए, pie charts हो गए. Okay. So then after doing this chapter, I asked you that I will share an Excel file. वो मैंने इसलिए नहीं की because let us complete this chapter also. तब हम एक compile Excel file के ऊपर सारे tests और सारे graphs बना के देंगे. So data interpretation means that presenting data in such a way so that it presents a meaningful information. Data को इस तरीके से organize करके लिखना, data collect करने के बाद तो उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके लिखना ताकि उससे हम कुछ इन्फ्रेंसेस निकाल सकें, कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकें. दैट इज कॉल्ड एज डेटा इंटरप्रिटेशन. ओके, सो डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीआई भी कहते हैं. इट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसीजर्स through which data is reviewed for the purpose of arriving at an inference. तो डेटा को हम रिव्यू करते हैं, उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं ताकि उससे हम कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सके, कुछ इन्फ्रेंस, कुछ कंक्लूजन निकाल सके. सो डेटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस. आप इंडस्ट्रीज का डेटा, प्रॉफिट का डेटा, कंपनी की सेल्स का डेटा ले सकते हो, या सेंसेक्स पॉपुलेशन डेटा जो होता है सेंसस का, दैट कैन बी यूज्ड. डेटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. वंस इट इज ऑब्टेन, देन इसको प्रोसेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन ताकि हम उससे कुछ कंक्लूजन्स निकाल सके, कुछ इन्फरेंस निकाल सके. So interpreting data requires analyzing data to infer information from it in order to answer questions. हम डेटा इंटरप्रिटेशन क्यों करते हैं? बिकॉज हमें कुछ डेटा दिया होता है, साथ में हमें क्वेश्चंस दिए होते हैं. We are given with some data and we are given with some problem to solve. तो हम डेटा को इंटरप्रेट करते हैं ताकि हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें. So data is interpreted because we need to solve some questions. We need to draw conclusions about our data. इसलिए हम डेटा को इंटरप्रेट करते हैं. So data can be provided in number of different formats. So data interpretation के हम 6 अलग-अलग formats पढ़ेंगे. The first is bar graph. पहले 4 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. जो बाकी के 2 होंगे, they will be new to you. So first 4, that is bar graph, tables, line graph, pie charts, caselet form, and radar or web questions. First 4 we have already done, but still हम इसको repeat करेंगे एक बार. So in statistics हमने already इनको एक बार देख लिया हुआ है. The first way of interpreting data is bar graph. All of you have in statistics we have looked into the bar graphs. So bar graph क्या है? ये जब हम rectangular bar से अपने डेटा को present करते हैं, they are called as bar graphs. Okay? So उस बार की width और उसकी length वो हमें बताती है कि वो बार क्या डिपिक्ट करता है, कितनी वैल्यू डिपिक्ट करता है. So, उसकी width जो है वो बताएगी और साथ में उसकी जो हाइट है उससे हमें पता चलेगा कि बार ग्राफ की वैल्यूज क्या है. So bar graph 2 तरीके के हो सकते हैं, horizontal and vertical. And both of them are made up of 2 axes, x-axis and y-axis. ठीक है, x-axis पे usually अगर हम vertical वाला bar graph बना रहे हैं तो x-axis पे क्या आएंगे categories और y-axis पे आएंगी values. So let us look into these 2 types of bar graphs. The first one, that is vertical bar graph. These are vertical bars. Second one is horizontal bar graph. There is no difference, it's a different way of presenting. Also same is the vector. Talk about the vertical bar graph. Qualitative categories on at y-axis and values on x-axis.
हो जाती है हॉरिजॉन्टल बार So these are very easy. We have already talked about them. हमने बार ग्राफ भी देखा था और साथ में हिस्टोग्राम भी देखा था. What was the difference between both of them? हिस्टोग्राम भी बनाया था और बार ग्राफ भी बनाया. Last chapter. What was the difference? Bar graph. Bar graph that is made for the categorical variable and the histogram that is made for the quantitative. Okay. So the first way of interpreting data is bar graph. Second are the tables. So जब आप whenever जब आप अपना project भी करोगे उसमें भी आप will make a lot of tables. उस tables के बाद आप जो है उसके ऊपर statistics calculate करते हैं. So table is something जिसकी rows होती है और columns होती है. रो की हेडिंग होती है फिर कॉलम्स की हेडिंग होती है और उसके बीच में आप डेटा लिखते हैं. सो टेबल इज व्हाट इट इज इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. सो हमें टेबल दिया जाएगा और हमें बोला जाएगा इस टेबल को रीड करो और इसको इंटरप्रेट करो. ठीक है. टेबल को रीड करके कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उस क्वेश्चन का आंसर देंगे. सो टेबल्स आर व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ सम रोज एंड सम कॉलम्स. These are called as columns. Columns, for example, there is departments, females है कितने males है percentage of females का वाला बता दे percentage of males तो definitely total 100 ही होगा. So 45% of the 840 employees are females and 45% are males. So आपको इस तरीके से टेबल्स दिए होते हैं विद इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स और आपको इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो आपको पूछा जा सकता है which department has the highest number of females. नंबर के आपको पहले सारे को परसेंटेज लगा के नंबर निकालोगे फिर 45% जिसका हाईएस्ट नंबर आएगा. इस तरीके से आपको हिडन कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है by providing such kind of data. This is another way of data interpretation. Again, this is another type of graph. Subject student, students. इनके नाम यहाँ पे लिखिए, इनके मार्क्स लिखिए. आपको पूछा जा सकता है which have got highest marks percentage. इस तरीके से पूछा जा सकता है. आप टोटल करोगे divide by say एक स्टूडेंट है इसके सारे मार्क्स का टोटल divide by टोटल मार्क्स. इस तरीके से आपको यूजुअली इसमें परसेंटेज के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं. ठीक है. अगर परसेंटेज दिए तो एब्सोल्यूट फिगर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो इस तरीके से टेबल्स आपको गिवन होंगे. यू मे बी आस्क्ड एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइप इज द लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ दे आर वेरी इजी. अगेन इट इज कंपोज्ड ऑफ एन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. जैसे आप बार बनाते हैं, बार की जगह हमने डॉट डॉट बनाकर लाइंस बनाई. जब हमें डेटा को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व करना होता है, जैसे एक ही वेरिएबल है
एक ही वेरिएबल को मैंने ओवर द टाइम ऑब्जर्व कर, जैसे कंपनी की सेल्स, मैंने कंपनी की सेल्स देखनी है कि पिछले 5 सालों में उसका ट्रेंड क्या रहा, तो मैं उसके लिए लाइन ग्राफ बनाऊंगी। आई विल नॉट मेक बिग बार ग्राफ फॉर इट। तो जब मेरा वेरिएबल एक ही है, एक ही वेरिएबल है, उसको मैं ओवर द टाइम ऑब्जर्व करना चाहती हूँ, देन आई विल मेक द लाइन ग्राफ्स। सो जो लाइन ग्राफ होता है उसमें एक हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कुछ भी यहाँ फिर एक टाइम वेरिएबल हो सकता है, जैसे अगर सेल्स का टाइम सेल देखना है कि ओवर द टाइम सेल्स बड़ी है या कम हुई है, तो वन कुड बी टाइम, एक्स एक्सिस पे टाइम आ जाएगा, वाई एक्सिस पे सेल्स आ जाएगी। या फिर अगर मैं देखना चाहती हूँ दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप कैसा है, जैसे सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग, नीचे मेरे एडवर्टाइजिंग आ जाएगा, यूजुअली एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, ऊपर ए एक्सिस पे मेरी सेल्स आ जाएगा एक्सपेक्टेड। सो लाइन ग्राफ हम कब यूज करते हैं, जब हम एक ही वेरिएबल को ओवर द टाइम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, या फिर कि दो वेरिएबल्स हैं उनमें आपस में रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, एक उनमें से डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट। दिस could be an example of line graph. सेल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो द पीरियड ऑफ टाइम, तो हम यहाँ पे मंथ लिख लिए, हर एक मंथ की सेल्स को प्लॉट कर दिया, देन उनको जॉइन कर दिया ताकि लाइन ग्राफ। या फिर कई बार मैं लाइन ग्राफ में कंपैरिजन भी कर सकती हूँ इस तरीके से, ये कॉमन सेंसिटिव एरिया है, टक्स एरिया में कैसे अलग है, कहते हैं दो टक्स की मेरे दो टक्स आते हैं और ये दोनों की सेल्स को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो एक मैंने ग्रीन से पिक करें, रेड से पिक करें, तो एक ही में मुझे दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा। या फिर ये मैंने अलग अलग ईयर्स ले लिए, सो वो दो लाइंस बच जाएगी, उससे मेरे को विजुअली कंपैरिजन हो जाएगा दोनों प्रोडक्ट्स का या दो साल। These are lines. Next are pie charts, which are also you all are familiar with pie charts. So it is a pie chart में क्या होता है? There's a circle that is divided into different sectors on the basis of its percentage. ठीक है? So एक circle बनाया जाता है, which is the center point. Center से angles draw कर दिए जाते हैं on the basis of the percentage. इससे जितना big pie होगा, circle is divided into different pies. जितना बड़ा पाई होगा उतनी ज्यादा परसेंटेज या प्रोपोर्शन होगी उस पर्टिकुलर कैटेगरी। सो लाइक इफ वी मेक पाई चार्ट लाइक दिस, देखना चाहते हैं मेरे टोटल जो है कंजम्पशन कैसे डिवाइडेड है अलग-अलग खर्चों। ये भी आपको खुद बनाने की जरूरत है, एक्सेल डज दैट फॉर यू। आप डेटा लिखोगे, ठीक है, ग्राफ्स में जाओगे, पाई चार्ट अपने आप इसका पाई चार्ट बन गया। So according to percentage that 47% of the total spending is on the rent, 30% on the saving side. So these are pie charts. Higher the pie, higher the percentage, higher is the proportion. Now ये तो चार हमने ऑलरेडी करे हुए थे। The two things जो नहीं है आपके लिए यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन में, they are caselet form and radar. Caselet forms they are just like the cases. इसमें क्या होगा, आपको इंफॉर्मेशन दी होगी, आपको उस इंफॉर्मेशन को याद रखना होगा, उसको याद रखना होगा, और कुछ इंफॉर्मेशन के बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिया होगा, आपको कोई टेबल कोई चार्ट कुछ नहीं दिया होगा, आपको सिर्फ पैराग्राफ फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी होगी, उसमें कुछ फिगर्स भी होंगी। सो उन इंफॉर्मेशन उस केस के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व, जैसे आप केस करते हो ऐसे करते हो, आपको केस दिया होता है कि आप नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, आप केस को पढ़ते हो, क्वेश्चन सॉल्व। सिमिलरली इज द केस सेट फॉर्म, पर यहाँ पर क्वेश्चन इज नॉट क्वालिटेटिव बट क्वांटिटेटिव, आपको फिगर्स भी दी होंगी, जैसे आप कुछ नॉर्मल केस करते हो अपने क्वेश्चंस अपने पेपर में, वो तो सिर्फ थ्योरेटिकल होता है ना, बट इन डेटा इंटरप्रिटेशन आपको प्रैक्टिकल सा केस आएगा इस तरीके से। विजिबल है, लाइट है थोड़ा डार्क,
तो इस तरीके से आपको केस गिवन होगा, सिनेरियो दैट इज गिवन, उसके बेसिस पे आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा एंड यू आर सपोज टू गिव द आंसर टू दैट क्वेश्चन। सो आपको यहाँ पर केस दिया, वो एक बार पढ़ेंगे, आप खुद पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा। पढ़िए।